تو ابھی جو آپ نے حق بات کہی ہے تو پھر اس کے اوپر قائم ہو نا، پھر اس کو جوتی کی نوک پہ رکھو۔ وہ بیچارہ جس نے قرآن اور حدیث کی تعلیم لینی ہے وہ ساتھ ساتھ جناب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست اور عزت اور وقار کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پشین کے علاقے سے آپ نے فارم 47 کے ذریعے سے فتح حاصل کی ہے نا، ابھی تک آپ اس حلقے میں نہیں گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ ٹاپک آج کل وہی چل رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی باز نہیں آ رہے۔ انہوں نے بھی پکا ارادہ اور اعادہ کیا ہوا ہے کہ اپنی مٹی پلیت کروائی رکھنی ہے۔ ابھی ان کے قصور کے جلسے کی جو راکھ اور خاک وہ ابھی نہیں بیٹھی تھی، اس کے اثرات ابھی نہیں بیٹھے تھے ان کے اس جعلی اور متنازعہ نیگیٹو منفی بیان کی، تو انہوں نے ایک دوسرا جناب بیان داغ دیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جناب پھر مدرسوں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور جلسہ کیا۔ جلسے میں کہتے ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی لوڈی ہے، اور میں اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ چلو جی، مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا مولانا، ہم نے آپ کو، آپ کی اس بات کو، آپ کے اس نیریٹو کو، آپ کے اس نعرے کو، آپ کے اس دعوے کو، آپ کی اس اسرشن کو، آپ کی اس بوسٹنگ کو، آپ کی اس پریٹنگ کو مان لیا کہ جناب موجودہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی ہے۔ تو جناب اسی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ بھی ایم این اے ہیں، اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کی پارٹی کے باقی بھی ایم این اے ہیں، اس موجودہ پارٹی کے اندر آپ نے تحریک انصاف کی جو بظاہراً سیٹیں بنتی تھی لیکن ان کی نااہلیت کی بنیاد پر، ان کے نکمے پن کی بنیاد پر، ان کی نااہلی کی بنیاد پر وہ ان کو نہیں ملی، اس کو بھی آپ نے ہتھیایا ہے، اور حصہ بقدر جسا وہ جو سیٹیں تقسیم ہوئیں پارٹی الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد انتخابی نشان نہ ملنے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد جناب آپ نے لسٹ جمع نہیں کروائی اس کی وجہ سے پارٹی کی جناب پلیٹ فارم سے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس جعلی پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں، ان کے خاندان کے باقی افراد بھی جعلی پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں، اور پھر اس جعلی پارلیمنٹ کے اندر جو تحریک انصاف کی سیٹیں لوگوں میں تقسیم ہوئیں اس میں حصہ بقدر جسا آپ نے آگے بڑھ بڑھ کے آپ نے وہ سیٹیں بھی لی، اور کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی ہے۔ تو اگر آپ کے اس دعوے کو مان لیا جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی کے کردار کے اندر آپ کا بھی حصہ بقدر جسا جناب آپ کا موجود ہے، آپ بھی اس پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی جوتے کی نوک پہ، تو جناب بسم اللہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ایک نہیں، میں 10 شو کروں گا اپنے اس آزاد ڈیجیٹل سے، اور میرا اگر آزاد ڈیجیٹل مجھے اجازت دے گا تو میں پرائیویٹلی اپنے جناب سوشل میڈیا کے میرے اکاؤنٹس ہیں، میں اس کے اوپر آپ کی تعریف کروں گا۔ آپ ریزائن کریں، چلو بسم اللہ کرو، آپ فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی یہ جو پارلیمنٹ ہے اس سے ریزائن کریں، کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے، اور جب آپ دعویٰ کریں گے تو جناب آپ تو بڑے ہی جید عالم دین، آپ تو جناب بڑے ہی حق بات کہنے والے، حق بات پہ ڈٹ جانے والے، حق بات کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں نا۔ تو ابھی جو آپ نے حق بات کہی ہے تو پھر اس کے اوپر قائم ہو نا، پھر اس کو جوتی کی نوک پہ رکھو، دو ریزائن، دو باقی پارٹی کے بھی اور رشتہ دار جو آپ کے ایم این اے، ایم پی اے، سینٹر، وزیر، مشیر، بلوچستان کے پی کے، سینٹ، قومی اسمبلی، لیکن آپ نہیں دیں گے۔ زمین ادھر کی ادھر، آسمان اوپر سے نیچے ہو جائے، آپ نے ریزائن نہیں کرنا، کیونکہ جناب موج ملنے ہیں، آپ کے لگے ہوئے تنخواہیں ہیں، جن تنخواہوں کا آپ لوگ شہداء کو اور پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو تانے دیتے ہیں کہ پیٹی اس وجہ سے پہنی ہے کہ تنخواہ ملتی ہے، تو ادھر بھی جناب تنخواہیں ملتی ہیں، لگژریز ہیں،
फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, और भी इसी किस्म की जनाब बीइंग MNA बीइंग सेंटर, वो आप नहीं छोड़ेंगे। फोके फायर करेंगे, फोके, डल्स डल्स डल्स, फोके। सामने बेचारे शरीफुल नफ्स किस्म के मासूम मदरसों के बच्चे बैठाए, 2000, 5000, 10,000 का मजमा किया, मीडिया बुलाया, लाखों करोड़ों रुपए के एक जलसे पे लगते हैं। कहाँ से आते हैं इनसे पूछा है। वो जुगनू मोहसिन साहिबा ने अपने प्रोग्राम में इनसे पूछ लिया था कि आपका जरिया माश, तो साहब बहादुर फरमाते हैं गैबी इमदाद होती है। वो यार केड़ी गैबी इमदाद है जी सिर्फ तानू होती है, दुनिया छोड़ किसी बंदे नहीं होती। हमारे घर तो जनाब 10वीं तारीख गुजरे तो जनाब फाके पढ़ना शुरू हो जाते हैं, बिल आना शुरू हो जाए तो जनाब बंदे के चाके शुरू हो जाते हैं। ये कौन सी गैबी इमदाद है जो मौलाना साहब को मिलती है जनाब, जो करोड़ों रुपए के खर्चे जनाब इनके पूरे होते हैं। तो जनाब मेरी मौलाना से गुजारिश है कि बिस्मिल्लाह करें इस जाली पार्लियामेंट को, इस लौड़ी नुमा पार्लियामेंट को, इससे अपने आप को दूर करें और मैदान में आ जाए। बिल्कुल दमादम मस्त कलंदर करते हुए आप मैदान में आए, फिर हम आपको मानेंगे कि हाँ जी अब आपने ये दावा किया है तो आप इस दावे के अंदर और अपने कौल के अंदर सच्चे हैं। चलो जी आपने माफी नहीं मांगनी, आपने कहा नहीं मैं इंसान और फरिश्ता नहीं शैतान ही बनना है। मैंने इबलीस से जना शैतान का जो सफर तय किया था, फरिश्ते से शैतान का इबलीस ने, आपने भी जिद लगाई, सो बिस्मिल्लाह। आपने क्या किया कि अपनी सोशल मीडिया की टीमें बनाई, वो मदरसे के बच्चे जिनको माँ बाप भेजते हैं कि ये कुरान हदीस शरीयत तरीकियत सूफियत रूहानियत और फिक़ह की तालीम हासिल करें, आपने उनको मोबाइल दे के जनाब मदरसों में बैठा दिया। अब वो पिछले 4 दिन से हंस हंस के बुरा हाल होता है मेरा। ये ट्रेंड चलाते हैं, ट्रेंड जनाब नंबर 1 आ जाता है, ये डोले फुला के कहते हैं ये देखो जनाब हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। फिर उसकी वीडियो बनाते हैं कि वो 20-25 बैठे हुए हैं जनाब मदरसे के बच्चे मदरसे में लगे हुए मोबाइल के ऊपर। ओ भाई ये कुरान और हदीस की तालीम लेने के लिए आए थे, इनको आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, सोशल मीडिया पे बिठा दिया। सोशल मीडिया तो दज्जाली चरखा है। वो बेचारा जिसने कुरान और हदीस की तालीम लेनी है वो साथ साथ जनाब वो मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत और इज्जत और वकार की जंग लड़ रहा है, साथ साथ ही जनाब सनी लियोन तो जनाब राखी सावंत की जनाब वो भी सारे के सारे नज़ारे लगा हुआ लेने हुए। वो किधर गई उसकी बेचारे की सारी दीनी तालीम ना मौलाना। और मेरी हाफिज अब्दुल्ला साहब से और कामरान मुर्तज़ा साहब से गुजारिश है एक केड़े पासे लाता जे अपने जनाब तुसी मदरसे से बच्चे और इस पर खुश हो रहे हैं। ट्रेंड नंबर 1 आ रहा है जी। और मैं वजीर इत्तलात रहा हूँ, मैं हर रोज ये ट्रेंड चलवाया करता था। 200 बंदे आपके पास हो और वो बैठ के 6-6, 8-8 जनाब ट्वीट करें तो आपका ट्रेंड नंबर 1 आ जाता है। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? इस पर डोले फुलाने की और इस पर जनाब फख्र करने की कौन सी बात है? फख्र करें कि आप हक बात कह रहे हैं, फख्र करें कि आपने जो बात कही जो अमल किया वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक है। फख्र करें कि आप एक एज अ लीडर, एक मजहबी लीडर, एक दीनी लीडर, आप पूरी कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। फख्र करें कि आप पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया हुआ मुल्क, उसकी तामीर और तरक्की के लिए आपने कोई किरदार अदा किया है। आप कहते हैं हकीकी जमहूरियत और जनाब जाली पार्लियामेंट। जिस पशीन के इलाके से आपने फार्म 47 के जरिए से फतह हासिल की है ना, अभी तक आप उस हलके में नहीं गए। ये बात मेरी सुन लें, पिछले 2.5 सालों में उस हलके का कोई वाली वारिस नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि आपके सरफराज भुट्टी साहब के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं कि आप चाहें तो वहां पूरी दिलचस्पी के साथ स्कूल, कॉलेज, गलियां, सड़कें, नालियां, शहरों, कस्बों, गांवों, गोठों, साफ पानी की फराहमी और बहुत कुछ काम करवा सकते हैं। लेकिन जिंदगी में कभी आपका ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। आपका ऑब्जेक्टिव है राम राम सपना, पराया माल अपना, चिको चिगनेरियां, अदियां तेरियां, बाकी अदियां मेरियां, तो बाकी अदियां भी मेरियां। मैं दावे से आपको चैलेंज दे के पूछता हूं कि पशीन के जिस हलके से आप बने हैं फार्म 47 के जरिए से, आपने उसकी बेहतरी के लिए क्या किया पिछले 2.5 सालों में? जरा उसका जवाब दे दें। आपके पास जवाब नहीं होगा। और बेटा आपको कहता है हम हकीकी जमहूरियत के लिए
55 साल से बादशाहत कायम है अपने वालिद साहब की पार्टी के अंदर और हकीकी जमहूरियत। मैंने आज तक दुनिया में 55 साल का बादशाह नहीं देखा। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, 55 साल की ड्यूरेशन का बादशाह आपको नहीं मिलेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक इनके वालिद मोहतरम साहब जनाब 55 साल से JEI के सरबराह है जी, कभी सेक्रेटरी जनरल के नाम पे, कभी अमीर के नाम पे, कभी सदर के नाम पे, सारा कुछ। तो ये पूरी कौम को बेवकूफ़ मत बनाएं। अब आपने एक दावा कर लिया कि ये जाली पार्लियामेंट है, तो बिस्मिल्लाह करो। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ये जो हर रोज़ शेर लिख लिख के आप जनाब ट्वीट कर रहे होते हैं ना, और कामरान मुर्तज़ा साहब अपनी तरफ से एडवोकेट हैं और जनाब बातें करते हैं, कहते हैं फयाजुल हसन चौहान जैसे बंदे की हम क्या, और जैसे से क्या मुराद है? मैं जुआ कराता हूँ, मंशियात बेचता हूँ, मैंने कोई जनाब ATM रखी हुई है कब्जा ग्रुपों वाली कातलों की लोग, मैंने कोई आजम खान स्वाति रखा हुआ है, मैंने कोई सेंटर तलहा महमूद जैसे लोग रखे हैं कि जो जनाब जिनके करोड़ों अरबों रुपए से मैं सियासत कर रहा हूँ और मुस्तफीद हो रहा हूँ। मैंने क्या अपने बीवी बच्चों को और अपने ख़ानदान को जनाब मैंने सियासत के अंदर मुसल्लत किया हुआ है? क्या मैं कब्ज़े करता हूँ? मैं क्या बदमाशियाँ करता हूँ? क्या मैं 7 मैंने मिनिस्ट्री एक्सरसाइज की हैं, मिनिस्टेरियल ओहदे, मैं 2 दफ़ा हुकूमतों में रहा हूँ। कभी कोई अल्लाह पाक के फजलो करम से, नबी पाक के सदके कोई 4 आने को इल्ज़ाम ही नहीं है। कोई फाइल, कोई नैब के अंदर, कोई पुलिस के अंदर, कोई एंटी करप्शन के अंदर, कोई किसी FBR के अंदर, कोई जुर्म तो दूर की बात, कोई फाइल तो दूर की बात, कोई FIR तो दूर की बात, कोई केस तो दूर की बात, इल्ज़ाम तक नहीं है। तो हम जैसे हो गए, और जो सर से पांव तक पूरे का पूरा टब्बर और उसके हवारी वो करप्ट है, बददियानत है, बदइखलाक है, बदकिरदार है, उनकी इखलाक, उनका किरदार, उनका माश, मुनाफकत, हर आमिर की गोद में बैठना, हर पार्टी की गोद में बैठना, बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलकर आपने हुकूमत की, नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर आपने हुकूमत की, काफ लीग के साथ मिलकर आपने हुकूमत की, परवेज मुशर्रफ की गोद में आप बैठे, आप जनाब अमेरिकन एम्बेसडर, खातून अमेरिकन एम्बेसडर की चरणों में बैठ के आपने वज़ारत उस्मा की भीख मांगी। करप्शन आपकी इखलाकी तौर पे आपके ऊपर 100 FIR जनाब इल्ज़ामात और सबूत सरकार के पास पड़े हुए हैं, एजेंसियों के पास पड़े हुए हैं, नैब के पास पड़े हुए हैं, और हमें आपका कामरान मुर्तज़ा साहब कहें कि फयाजुल हसन चौहान जैसे बंदे को हम क्या जवाब दें? अल्लाह पाक के फजल करम से फयाजुल हसन चौहान आपके मौलाना फजल रहमान से लेके और आप तक सारों से 1000% इखलाक से लेके, सियासत से लेके, मुआश से लेके बेहतर इंसान है। मुनाफकत नहीं करता, हक चार यार के नारे को बेचता नहीं है, इस्लामी निज़ाम के नारे को बेचता नहीं है। तो मेरी अब मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश है, बिस्मिल्लाह करें। परसों के जलसे में आपने, कल या परसों के जलसे में आपने जिस पार्लियामेंट को इस्टेब्लिशमेंट की लोडी कहा है, उस पार्लियामेंट से आप भी निकले और अपनी पूरी जनाब JUI की जनाब जितने MNA हैं, MPA हैं और सेंटर है, उनको भी निकलवाएं। अगर तो आप निकलवा लेंगे, खुदा की कसम ऐसे सलूट आपको मारूंगा, और अगर आपने ना निकाला तो फिर साबित हो गया कि आप रॉन्ग नंबर हैं। थैंक यू वेरी मच।